everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of magnetic effects of electric current chapter. Today we are going to do activity based on that NCERT syllabus. So activity number 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 we are going to discuss, where activity number 13.1, 13.4 are nothing but same. 13.1 में से बताया है कि when current is flowing through conductor there will be magnetic field, but 13.4 में explain क्या है कि when there is a flow of current there is a magnetic field, and if we will change the direction of current then direction of magnetic field will also change. ये सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस कर ली है, but that time I couldn't manage to show you activity. This time I have an apparatus and all, so I thought I should show it to you all so that you can understand the concept in better way. So now we will start with the activity. So first I'll start with the activity 13.2, then I'll go to activity number 13.3. At the end we will do activity 13.1 and 4. We are going to start with activity number 13.2 of NCERT textbook. So what is given as a first point? Fix a sheet of white paper on a drawing board. So this is the white paper and this is the notebook which I'm going to use as a drawing board. Fine. And we have to fix it using some adhesive material. So what is the adhesive material? So I have taken these pins, U-pins, which will act as an adhesive material. So why are we using adhesive material to fix these papers? Because it should not shift. Correct. If it will shift and all, so there's a possibility you may not get a specific pattern. So we are going to fix it. So we have fixed it. We have fixed this paper. Fine. So this pattern is done. This platform is ready now. Now what are they saying? Place a bar magnet in the center of it. So this is a bar magnet. Correct. So we are going to keep this bar magnet at the center of it. So at the center I have kept. What is the next point? After keeping this bar magnet, what are we supposed to do? Next point is sprinkle some iron filings uniformly around the bar magnet. As you can see, this is iron filings, correct? So I'm going to sprinkle iron filings uniformly. Okay. I'm trying to sprinkle it uniformly, but you may see a specific pattern. That's a different thing. But my task is to sprinkle it uniformly. Correct. I want to sprinkle it uniformly, but you can see in the pattern there's no uniformity. पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी नहीं है और यू कांट सी जो अमाउंट है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आपको दिख नहीं रहा होगा. कहीं पे बहुत ज्यादा कलेक्शन होगा, कहीं पे बहुत कम कलेक्शन होगा. दैट यू कैन सी क्लियर. एंड देन यू विल बी फाइंडिंग एक कोई पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा ऑल अराउंड. फाइन. सो व्हेन आई एम गोइंग टू स्प्रिंकल, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा है तो जस्ट आई विल पुट लिटिल मोर सो दैट. Okay, now this is done. What is the next point? Now tap the board gently. हम बोर्ड को gently tap करते हो. If you'll see now, when I'm tapping this, you can see these iron filings are jumping and going to a specific place. Okay, so just I'll tap it from all around. You can see there's some specific pattern formation we are getting. Now this pattern is formed. Now we are supposed to understand this pattern. Now what is happening and what are we supposed to understand in this case? So as you can see in this case, this is the pole and this side also you can see pole. So on the poles you can see the number of this iron filings is more. So more iron filings are collected over here. और ये जो pattern आपको मिला ना, this is the pattern of magnetic field lines. ये जो भी pattern होगा, this pattern is called the magnetic field lines of bar magnet. So magnetic field lines का क्या होगा कि there's a one north pole and one south pole. So magnetic field lines are starting from the north pole and going till south pole. So ये pattern आपको दिख रहा होगा. Correct. So they are trying to form a loop basically. You can see. And there's a one point. The point is degree of closeness will give you the strength of magnetic field. Degree of closeness. So wherever magnetic field lines are more closer, that place magnetic field will be more. So you can see at the pole मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर क्लोजर. एज यू कैन सी यहाँ पे ना आयरन फाइलिंग्स की क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पे भी आयरन फाइलिंग्स की क्वांटिटी ज्यादा है. मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर एट पोल्स.
so magnetic field will be more at the poles of the bar magnet, but as you can see at the lateral side में you can see the number of field lines are less and separation between them is more, है ना. यहाँ पे closeness इतना ज्यादा नहीं है lateral part में, but you can see at the pole closeness will be more. So at the pole closeness between magnetic field lines more, that's why you can say maximum magnetic field you will have at the poles. But at the lateral sides if you are seeing spacing between magnetic field lines are more, so closeness वहां पे कम है, that's why magnetic field at the lateral side part पे जो होगा lateral side part will be what less. I hope you people understood what is magnetic field lines, practically how does it look and how will the bar magnet form this pattern. Okay, now we'll go to the next activity. Now we will discuss about NCERT activity 13.3. What is the first point? Take a small compass, magnetic compass. तो ये हमारे पास एक small magnetic compass है, correct, as you all can see. Clear? So in magnetic compass में if you'll see there is a tip of arrow and this is the behind part. Tip of arrow will indicate north pole and the behind part of the arrow will indicate south pole. Now next point is that there's a bar magnet you need to take. This is a bar magnet. Is that clear? So when we are talking about this one, so bar magnet you can see. So bar magnet में we have to identify which pole is this. Which pole is this? So for that what will I do? I will take the magnetic compass very close to that end and you can see magnetic compass का south pole. Magnetic compass का south pole is towards the north pole, towards this pole of bar magnet. ये बार मैग्नेट इस पोल की तरफ है, तो साउथ पोल अगर मैग्नेट नीडल का है तो बार मैग्नेट का दिस पोल इज व्हाट नॉर्थ पोल. ओके, सो वी आइडेंटिफाइड द पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया? वी हैव टू कीप इट ओवर हियर, दिस बार मैग्नेट. व्हाट आर दे सेइंग? यू कैन कीप इट एनीवेयर बट यू हैव टू कीप इट ऑन this white sheet. So place the magnet on a sheet of white paper fixed on a drawing board using some adhesive material. So ये white sheet हो गया, correct, and we have fixed on the board and this is the adhesive material with which we have fixed this paper. And the next point they are saying mark the boundary of the bar magnet. अब ये जो बार मैग्नेट उसकी बाउंड्री को आप मार्क करोगे, ठीक है, दैट इज आवर टास्क. तो हमने क्या किया, इसकी बाउंड्री को मार्क कर दिया. सो वी हैव मार्क द बाउंड्री ऑफ दिस बार मैग्नेट and when you are drawing this bar magnet का boundary that should be very fine, so you have to be very careful about it. So अगर आपको दिखाना है तो you can show it like this. ये दिख रहा है आपको, तो हमने इसकी बाउंड्री मार्क कर दी. क्लियर? अब क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में, they are saying place the compass near the north pole of magnet. तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल देखो, अभी ये यहां से लेके ये पूरा नॉर्थ पोल ही है, तो इट्स बेटर इफ यू कीप इट एट द सेंटर, देन पॉसिबिलिटी की मैग्नेट लाइंस विल बी वेरी बिग. सो आपको शायद ना पैटर्न इस फ्रेम में नहीं दिखाई दे, तो इट्स वेरी फाइन इफ यू आर आइदर क्लोज कीपिंग इट दिस एंड और यू कीप इट दिस एंड. दिस एंड का भी इशू क्या है कि दिस फ्रेम को यू कांट सी, द बिलो का फ्रेम यू कांट सी, तो अपर फ्रेम में तो यू कीप वेरी क्लोज टू दिस वन. ठीक है, तो वी डिसाइडेड कि वी विल कीप द बार मैग्नेट वेरी क्लोज टू दिस, लाइक दिस वी हैव केप्ट. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? Place the compass near the north pole of a magnet and it is seen that, what is seen that? You can see the south pole of magnet needle is towards the north pole of bar magnet and north pole of magnet needle is away from the north pole of bar magnet. यहां समझने के लिए आप लिखना है तो लिख लो, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, साउथ पोल हो गया. करेक्ट. तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल इज टुवर्ड्स एंड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज डायरेक्टेड अवे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द निडल. दोनों निडल के एंड को मार्क करो, तो एक तो यहां पे ऑलरेडी है ही एंड द सेकेंड पॉइंट को भी हमने मार्क कर लिया सेकेंड एंड पे. करेक्ट, वी हैव मार्क्ड. क्लियर. आफ्टर मार्किंग द बोथ पोजीशंस, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नाउ दे आर सेइंग आफ्टर मार्किंग पोजीशन, नाउ मूव द निडल टू द न्यू पोजीशन. आपने निडल को नए पोजीशन पे शिफ्ट करना है, तो नए पोजीशन पे शिफ्ट करके लेके जा रहे हो. व्हेन यू टेक द न्यू पोजीशन, देन व्हाट विल हैपन? व्हेन यू आर टेकिंग द न्यू पोजीशन, यू हैव टू सी अगेन, you will find out whatever was the previous position. Previously whatever was north, previously whatever position was for the north end of the magnetic compass, now that is acquired by the south end of the magnetic compass. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर से हमने मार्क किया,
तो हमने उसको फिर से मार्क कर दिया, जो भी है साउथ एंड वाले को हमने फिर से मार्क कर दिया। अभी क्या कह रहे हैं, अगेन यू कीप द नीडल, करेक्ट, यू कीप द नीडल, shift to the new position and wherever you are getting, mark it over there. Then similarly you keep doing accordingly, correct, you have to shift and you have to repeat this activity up to what extent, and make sure that the bar magnet is not showing any shift in its position, otherwise क्या होगा, आपको proper reading मिलेगी नहीं, ठीक है। तो wherever we are getting we will keep marking, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको आप मार्क करते जाओ, कब तक, जब तक कि हम ना साउथ पोल पर नहीं पहुंच जाते। once we reach to the south pole, then this magnetic field lines will be completed, correct। So repeat this activity till the time we are not reaching to the south pole of this bar magnet, ठीक है। So as you can see ना, हमेशा मेरा वही टास्क होगा कि जो साउथ पोल होगा that should coincide to the previously acquired by north pole या previously occupied by north pole, and finally ये क्या होगा, इस पोल को coincide हो जाएगा, correct। तो we have marked। what is the next point, they are saying in this way proceed step by step till you reach the south pole of the magnet as shown in the figure। they are saying join the points marked on the paper by smooth curve। तो ये अभी क्या है, इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है थ्रू स्मूथ कर्व्स। ये जो स्मूथ कर्व्स मिल रहा है आपको, यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। दिस आर वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर। ये पॉइंट क्रॉस शिफ्ट हो गया रहेगा, कोई इशू नहीं। अब ये क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड ड्रॉ एज मेनी लाइंस यू कैन। तो अब अगर अगला आपको ड्रॉ करना है तो व्हाट विल यू डू, इन बिगिनिंग यू कीप इट ओवर हियर, अब उसको थोड़ा सा डाउन रख दो, फिर कीप इट डाउन। एज यू कैन सी कि अभी जो है नॉर्थ पोल है, यहां पे इंडिकेट कर रहा है। नाउ यू विल कीप द मैग्नेट ओवर, या फिर उसको शिफ्ट करोगे यहां पे, ठीक है। फिर ये पॉइंट को इंडिकेट करेगा, फिर यहां पे करके, तो अभी ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, तो हो सकता है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा थोड़ा सा बिगड़ मिले। गॉट इट। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट, सो दे आर सेइंग रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड ड्रॉ एज मेनी लाइंस एज यू कैन। नाउ दे आर सेइंग यू विल गेट अ पैटर्न एज शोन इन द फिगर। ये आपको जो दिख रहा है, दीज लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेट। इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इट्स अ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। And then they are saying there are known as magnetic field lines. These are known as magnetic field lines. ये जो लाइंस है, ये लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। There are many patterns, आपने इसके पहले वाले एक्टिविटी में देखा होगा, ठीक है। And they are saying observe the deflection in the compass needle as you move it along the field lines. तो अब ना ये यहाँ पे आपने रखा, अब ना मैग्नेटिक कंपस के ऊपर, अब इस लाइन के ऊपर आप उसको मूव करके देखो, ठीक है। तो हाउ विल आई मूव, अब ये देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं पेन के थ्रू ही इसको शिफ्ट कर रहा हूं। एज यू कैन सी ना, जैसे मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूं, इफ यू रियलाइज जो नीडल है ना, नीडल इज गोइंग पैरेलल टू द लाइन एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, करेक्ट। जैसे जैसे आप लाइन पे शिफ्ट कर रहे हो, वैसे वैसे ना ऑटोमेटिक नीडल क्या हो रहा है, आपका टिल्ट हो रहा है। फाइन, मैं ऐसे अकॉर्डिंगली ऐसे ले लेता हूं। फाइन, यू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ नीडल। सो नीडल इज ऑलवेज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये डायरेक्शन हमको कैसे मिलता है, इसके ऊपर ना हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस कर्व के ऊपर वो क्या होगा, सेम होगा। सो टेंजेंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो इंडिकेट करेगा ये। तो जिधर ये टिप इसका इंडिकेट करेगा, वो टिप ही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कीपिंग इट ओवर हियर, तो यहां पे अगर मैंने ये शिफ्ट होगा मैग्नेट, मैं एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है। इफ आई कीप इट ओवर हियर, ठीक है, ये एक मिनट, सॉरी। सो आप अगर इसको किसी पोजीशन पे रख दो, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम कीपिंग इट ओवर हियर, सो यू कैन सी द नीडल का टिप इज इंडिकेटिंग दिस साइड, तो इट्स द मैग्नेटिक लाइन ओवर इज दिस साइड। इफ आई कीप इट ओवर हियर, यहां पे मैंने रखा, तो ये क्या है, इन्वर्ट हो गया। यहां पे रखा था, यहां पे डायरेक्शन अलग था, करेक्ट। द मोमेंट आई कीप, यहां पे ये तुरंत इन्वर्ट हो जा रहा है। एज यू कैन सी व्हेन आई एम शिफ्टिंग लाइक दिस ना, आप देखो यहां पे ये नीडल ना रिवर्स हो रहा है, करेक्ट। यहां पे आके वो एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा था, इस पॉइंट पे अभी नीडल इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो wherever you are trying to find the direction of magnetic field, you need to keep the magnetic compass at that point. Whatever is the direction of tip of needle, that will be the direction of magnetic field. And the second method to get the direction of magnetic field is the tangent drawn to the magnetic field lines will give you direction of magnetic field. Magnetic field
line will give the direction of magnetic field at that point. Direction of magnetic field at that point. ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी है जो हमने परफॉर्म किया. Now we'll go to the next activity. Now I will discuss about activity number 13.4. There's a little issue because I don't have actual instruments and all, but whatever we need to do this experiment or do this activity, the important components we are having. So we have to manage with this one. Exactly everything we are not having as it is given in this book or in activity. So the first point is that they are saying take a long straight copper wire. And so you can see there's a long straight copper wire. I have taken this copper wire, correct? Straight copper wire I have taken. Then they are saying 2 or 3 cells of 1.5 volt each. तो मैंने ये बैटरी लिया है. बैटरी में क्या है, आप देखो पोटेंशियल सेलेक्ट कर सकते हो. 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 12 वोल्ट. एक हिसाब से वो बैटरी ही हो गया, करेक्ट. अब इसमें पोटेंशियल मैं ना 12 वोल्ट सेट करूंगा. देयर इज अ रीजन, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे वायर मैंने काफी थिक लिया हुआ है तो उतना इफेक्टिव वो आपको दिखेगा नहीं करंट. सो टू सी द बेटर इफेक्ट आई हैव टेकन दिस 12 वोल्ट आई अप्लाई. देन दे आर सेइंग एंड अ प्लग की. सो यहाँ पे प्लग की के लिए मैंने क्या किया, ये स्विच को यूज किया है. एज यू कैन सी ये ऑन होगा फिर ऑफ होगा, करेक्ट. ये हमारा प्लग की है, गॉट इट. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या इन्होंने बोला है, कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज एज शोन इन द फिगर. आपको ना जैसा फिगर में दिखाया, मतलब एक डायग्राम है उसके हिसाब से सीरीज में कनेक्ट करना है. तो देखो ये जो है बैटरी का जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस एंड, नेगेटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है, करेक्ट. नाउ दे आर सेइंग प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर द कंपास नीडल. तो देखो यहां पे क्या है ना, कंपास नीडल आपको दिख रहा है यहां पे. तो ये जो है नॉर्थ पोल ऐसा मैंने सेट किया हुआ है, करेक्ट. अब ये है वायर, यहां पे देखो ये है इसका, ये एंड से करंट एंटर करेगा एंड विल कम आउट ऑफ दिस वन, दिस एंड, ठीक है. और मैग्नेटिक कंपास को मैंने क्या किया, उसके पैरेलल रख दिया, ठीक है. तो ये यहां पे जो वायर है, जैसा आई एम कीपिंग द वायर पैरेलल टू दैट मैग्नेटिक कंपास का नीडल. तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट आपको नीडल दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ कॉपर वायर ओवर दैट. एंड व्हाट नेक्स्ट, दे आर सेइंग प्लग द की इन दिस सर्किट. आप सर्किट को ऑन करो एंड देन यू सी व्हाट इज हैपनिंग. इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देखो यहां पे करंट ना नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ फ्लो होगा, तो दे आर सेइंग द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल. सो ऑब्जर्वेशन अगर आप देखते हो ना, तो जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का नॉर्थ पोल होगा, जो नीडल का जिसका मैग्नेटिक कंपास का नीडल का नॉर्थ पोल, वो डिफ्लेक्ट होगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में. हमको ना उसको ही ऑब्जर्व करना है. तो पहला क्या है, अगर करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो वी आर सेइंग नीडल वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट. अब यहाँ पे ईस्ट कहां पे होगा, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो राइट साइड में ईस्ट होगा, इस साइड में क्या होगा, लेफ्ट में होगा, लेफ्ट होगा. तो राइट साइड में ईस्ट होगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू सी द ऑब्जर्वेशन वेरी केयरफुली, हम क्या करते हैं, मैं इसको स्टेशनरी रख देता हूं द सिस्टम, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी इफेक्टिवली कि एक्चुअल में क्या हो रहा है. हमने क्या किया, मैं करंट को ऑन करता हूं. एज यू कैन सी ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल. वो अलग बात है कि मैंने थोड़ा सा कनेक्शन में थोड़ा ये ब्लैक वाले को मैंने एज अ पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है. यहाँ पे जो रेड वाला है उसको मैंने नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया. यू कांट सी मोबाइल राइट नाउ, ठीक है. सो अब ये क्या हो गया, अब मैं सर्किट को ऑन करता हूं. व्हेन आई स्विच ऑन द सर्किट, यू नीड टू सी कि नीडल डिफ्लेक्ट होता है क्या, करेक्ट. एज यू कैन सी नीडल इज डिफ्लेक्टिंग, बट विच डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपको इफेक्टिवली पता नहीं चला. तो व्हाट विल आई डू, आई विल नॉट कीप इट लिटिल आउटसाइड, ठीक है, लिटिल अवे. वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा सा वीक होगा, आपको पता चलेगा कौन साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इट इज डिफ्लेक्टिंग ऑन राइट साइड, करेक्ट. इट्स डिफ्लेक्टिंग ऑन राइट हैंड साइड इन द सेंस यू कैन सी लाइक दिस कि इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है. डिफ्लेक्शन इज लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट, ये दिस एंड इज नॉर्थ, दिस एंड इज साउथ, दिस एंड इज वेस्ट एंड दिस एंड इज व्हाट, ईस्ट. तो नीडल इज डिफ्लेक्टिंग ऑन द east side direction as it is mentioned in the activity. So what are they saying in the next one, replace the cell connection in the circuit. क्या करना है, this would result the change in the direction of current through it. अब ना करंट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए. तो करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे आप, करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए देखो अभी यहाँ पे आपने जो हमने लिया हुआ है, ये देखो ये क्या है, ये रेड वाला टर्मिनल, ये दिख रहा है आपको,
यहाँ पे ये रेड टर्मिनल और ये ब्लैक टर्मिनल, उसको मैं अभी चेंज कर रहा हूं। तो ये मैं ब्लैक टर्मिनल को यहां से उठा के आई विल कनेक्ट इट टू दिस एंड, और रेड टर्मिनल को मैं उठा के यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ विच द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब वापस से देखो ना, पैरेलल में रख रहा हूं, अगर उसके ऊपर भी रख सकता हूं, मैं साइड में रखता हूं, सो दैट ना वी कैन अंडरस्टैंड कि डिफ्लेक्शन किस साइड में हो रहा है। सो वापस से अगेन आई विल रिपीट द पॉइंट, रिप्लेस दिस सेल कनेक्शन in this circuit as shown in the figure. This would result in the change in the direction of current through the copper wire. अब copper wire में direction of current change हो गया। पहले कैसा होता था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ करंट फ्लो रहा था। नाउ करंट विल फ्लो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एंड वी नीड टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। हम देखते हैं नीडल कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। देन दे आर सेइंग you make it in such a way that current flows from south to north pole. Observe the change in the direction of the needle. हमको निडल के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन देखना है। तो एज यू कैन सी इट इज डिफ्लेक्टिंग ऑन विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इन दिस, एज आई सेड, ये नॉर्थ साइड है, दिस इज व्हाट साउथ साइड, दिस इज ईस्ट एंड दिस साइड इज वेस्ट। बिफोर इट वाज डिफ्लेक्टिंग ऑन राइट हैंड साइड, दैट वाज ईस्ट। नाउ करंट का डायरेक्शन यू हैव चेंज, इट इज डिफ्लेक्टिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज व्हाट वेस्ट। So this point should be very clear to us कि when there is any conductor carrying current, so around that magnetic field is generated. That magnetic field you can see, how do you know there's a magnetic field? Because magnetic compass is deflecting. Magnetic compass deflect हो रहा है, इसका मतलब magnetic effect और magnetic field generate हो रहा है around the conductor. As you can see, if we will change the direction of current, the direction of magnetic field भी क्या होगा, change होगा. That point should be very clear to us. I hope whatever part I explained through activity you people understood. ये वैसे मैंने ना पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये एक्चुअल में ना ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का भी है, कंडीशन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में सेम है। तो एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी 13.1, एक्टिविटी नंबर 13.1 एंड एक्टिविटी नंबर 13.4 आर बेसिकली सेम थिंग। 13.1 में जस्ट हमको ना डिफ्लेक्शन देखना है, और 13.4 में हम ना प्रॉपर डायरेक्शन एंड ऑल सब ऑब्जर्व करें। डिफ्लेक्शन हुआ पहले एक्टिविटी में, बस हमें वही बताना है। 13.4 में हमें बताना है कि अगर करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, और साउथ टू नॉर्थ फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा। आप हमेशा इस पॉइंट को याद रखना कि इस साइड में नॉर्थ होगा, इस साइड में साउथ होगा, इस साइड में ईस्ट होगा, इस साइड में वेस्ट होगा। सो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप वीडियो को फिर से देख लो, सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि आपको करना क्या है। एंड डायरेक्शन शुड बी वेरी क्लियर टू अस। डायरेक्शन में इफ एनी problem, then you'll go wrong. I hope whatever activity I explained you people understood. Activity is better to understand the concept that I know. So जो apparatus है मेरे पास, उससे मैंने ट्राई किया मैनेज करने के लिए। I will try my best कि फ्यूचर में भी जो एक्टिविटीज है उसको भी मैं शो करने की कोशिश करूं। पॉसिबल होगा तो I will definitely show it to you all. बट अगर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल की प्रॉब्लम होगी तो देन देयर विल बी लिमिटेशन फॉर मी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। इफ आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शो इट थ्रू एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच।